دکن نامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آندھرا پردیش میں آئندہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر علماء اور دانشوروں پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ 30 ارکان پر مشتمل اس کونسل کے تاسیسی اجلاس میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے صدر حامد محمد خان کو صدر منتخب کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے نمائندگی کرنے والے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، مشائخین اور دانشوران پر مشتمل اس اجلاس کا مقصد ایک ایسی کونسل کا قیام ہے جو آئندہ سال ریاست میں منعقد ہونے والے اسمبلی اور لوک سبھا الیکشن میں ریاست آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی رہبری کر سکیں۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند اے پی کے سیکریٹری ظفر احمد عاقل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ انتخابات کے مواقعوں پر ریاست کے مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم یونائیٹڈ مسلم فورم کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن ظفر احمد عاقل کا ماننا ہے کہ یہ تنظیم اپنے قیام کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکی۔ ریاستی مسلم کونسل آندھرا پردیش کے تاسیسی اجلاس کے موقع پر اتفاق رائے سے حامد محمد خان کو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا۔ مسلمانوں کے پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کو بڑھانے کے لیے جو کام لسنرز ہیں ان کو ووٹر میں تبدیل کرنے کے لیے، فضائی قوتوں اور طاقتوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے اور مسلمانوں کے حقوق کو سیاسی پارٹیوں سے مفاہمت اور مذاکرات کرتے ہوئے انہیں دلوانے کے لیے اور دباؤ بنائے رکھنے کے لیے ان مقاصد کے تحت زعماء ملت، علماء کرام، مشائقین عظام، دانشوران کرام پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کے تاسیسی ارکان کا اجلاس ہے۔ صدر کونسل حامد محمد خان نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد علاقۂ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ طور پر کوششیں کی جائیں گی۔ ای ٹی وی نیوز، حیدرآباد۔ نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا کے زیر اہتمام حیدرآباد میں کتاب میلہ جاری ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو کی مرکز شہر حیدرآباد میں منعقدہ ایک اہم کتب میلے میں اردو کی کتابوں کا صرف ایک سٹال ہے۔ یہ کتاب میلہ NTR اسٹیڈیم میں جاری ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر کتابی میلے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سال حیدرآباد بک فیئر کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے اس بار نیشنل بک ٹرسٹ کا تعاون حاصل ہے۔ اس مناسبت سے اس سال کتابوں کا ذوق رکھنے والوں کے لیے حیدرآباد کے کتب میلے میں پہلے سے زائد ناشرین اور مختلف موضوعات کی ہزاروں کتابیں خریدنے کا موقع ملے گا۔ یہاں بک فیئر میں ہم آئے اور ماشاءاللہ محسوس ہوا ہمیں کہ ابھی علم زندہ ہے اور کتابوں کو براہ راست پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہاں لوگوں کی جو بھیڑ دیکھی اور لوگوں کی جو آمد دیکھی، ان کی تعداد دیکھی، دل خوش ہوا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ماڈرن دور میں انٹرنیٹ کے سیلاب نے سب کچھ ختم کر دیا ہوگا، لیکن لوگوں کی طرف جو لوگوں کا جو کتابوں کی طرف رجوع ہم نے دیکھا، کتابوں سے جو تعلق دیکھا، تو ہمیں تاریخ یاد آ گئی۔ حیدرآباد بک فیئر میں ملک بھر کے مختلف ناشرین اور کتابوں کے تاجرین کے 380 اسٹالز لگائے گئے ہیں، لیکن اردو کی کتابیں خریدنے کے خواہش مندوں کو یہ دیکھ کر تھوڑی مایوسی ہوئی کہ اس وسیع و عریض کتابی میلے میں صرف واحد نام خدا پبلشرز کا ہے۔ حیدرآباد بک فیئر میں ایک اردو کا ایک بہترین بک اسٹال لگا ہے، لیکن اردو پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اس کے حساب سے اردو اسٹالز کی تعداد بہت کم ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ ایک سوچنے کا پہلو ہے کہ ہم اردو پڑھنے اور اردو بک اسٹال اور اردو کتابوں کو ترغیب دینے، پڑھنے، آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ اردو کے اسٹالز کو کیونکہ ریسپانس کم مل رہا ہے، تو آہستہ آہستہ دلی کے جو 2-3 پبلشر کسی وقت حصہ لیتے تھے اس طرح کے بک فیئر میں، وہ ان کو حوصلہ بھی ملا اور اس میں زیادہ چاشنی نظر نہیں آئی، تو چنانچہ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے اور اب صرف ہم لوگ ہی حصہ لے رہے ہیں اس کے اندر۔ حیدرآباد بک فیئر میں ہدا پبلشر اردو کی کتابوں کا واحد مرکز ضرور ہے، لیکن اس اسٹال میں مختلف موضوعات پر اردو کی سینکڑوں کتابوں کی پیشکش کے ذریعے
यहाँ उर्दू की नुमाइंदगी को मुनासिब तौर पर पेश करने की कोशिश की गई है। ETV न्यूज हैदराबाद। दक्कननामे में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर उसामा के साथ। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लखनऊ में वाक़े दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बंदूक को रियासत की तबाही के लिए करार दिया जिम्मेदार। लोगों से की तशद्दुद पसंद अनासिर की हौसला शिकनी की अपील। नौगाम मिलिटेंट हमले की थी पहले से जानकारी, ताहम हमले के मकाम पे आम लोगों की मौजूदगी की वजह से नहीं की गई कार्रवाई। IG CRPF का बयान। और मुलाजमीन के बेशतर मुतालबात को किया गया मंजूर, ताहम कुछ मुलाजिम लीडर मुलाजमीन को कर रहे हैं गुमराह। वजीर खजाना अब्दुल रहीम राथर का बयान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासत में चल रहे बिजली बहरान के लिए PDP को जिम्मेदार ठहराया। लौलाब कुपवाड़ा में एक अवामी जलसे से खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि PDP के लीडर जगह जगह जाकर बिजली की किल्लत की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में इस मसले के इजाले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि PDP जम्मू कश्मीर में अभी तक सिर्फ एक बार हुकूमत में आई है, वो भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादातर इख्तियार में रही है। मैं आपके घरों तक 24 घंटे बिजली नहीं पहुंचा सकता। दिन में 8, 10, 15 घंटों का खर्च लग जाता है, लेकिन उसके लिए कसूरवार कौन? यही वो काले लोग जो काले चश्मे पहन के अपनी आंख पीछे से बंद रखते हैं, जिनको आज हमारे काम नजर नहीं आते। जब उनको मौका मिला तो उनसे पूछिए क्या किया उन्होंने,
जरा उनसे पूछिए जब 6 साल वो हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए थे उन्होंने बिजली के कितने नए प्रोजेक्ट इस रियासत के लिए सैंक्शन करवाए, एक भी नहीं। लौलाब जलसे के दौरान वजीर आला ने बंदूक को रियासत की तबाही के लिए जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने आवाम से जोर दिया वो तशद्दुद पसंद लोगों की हौसला शिकनी करके रियासत में अमन खुशहाली के लिए कमरबस्ता हो जाएं। 20-25 साल का हमें हिसाब किताब चुकाना होगा। हमें अपने आप से पूछना होगा कि जो बंदूक, चाहे यहां की बंदूक हो, बाहर की बंदूक हो, उस बंदूक से हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, हमने क्या हासिल किया, क्या खोया। दुनिया ने तरक्की की, इस मुल्क ने तरक्की की, लेकिन हम पीछे रह गए। हमारे पड़ोसी रियासत जो हमसे कई गुना पीछे, ज्यादा पीछे थे, वो हमसे आगे निकल गए। आईजी सीआरपीएफ कश्मीर पीके सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को श्रीनगर में इम्कानी हमले के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन बुध के रोज के हमले के मकाम पर आम लोगों की मौजूदगी ने हिफाजती अमले को मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई से रोके रखा। नौगांव श्रीनगर में मिलिटेंट हमले में हलाक हुए एएसआई उदित नारायण को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई तकरीब के दौरान वो मीडिया से बात कर रहे थे। हम लोग इनपुट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे कि इस टाइप का स्पेक्टिकुलर और डेयरिंग एक्ट करने की फिराक में है मिलिटेंट, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक पाबंदी रहती है कि लिमिटेशन रहती है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में करने की एक लिमिटेशन रहती है, क्योंकि ट्रूप्स को रिस्ट्रेंट के साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ता है जिससे कि सिविलियन कोलेट्रल डैमेज ना हो। उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो है वो उसका जो मिलिटेंट है फायदा उठा रहे हैं और जो नुकसान हुआ है और जो मिलिटेंट एस्केप कर पाए हैं। आईजी सीआरपीएफ ने कहा कि हमले में मुलविस मिलिटेंटों की तलाश जारी है। भी आने वाले समय में हम लोग ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जिससे कि इस ग्रुप को हम जो मिलिटेंट ग्रुप है जो इस प्रकार का कार्रवाई कर रहा है उसको हम लोग एप्रीहेंड कर सकें, उनको एलिमिनेट कर सकें। आने वाले वक्त फोर्सेस हमेशा किसी भी एक्सट्रीम हालात के लिए तैयार रहते हैं और सीआरपीएफ भी तैयार है। किसी प्रकार का जो भी हालात होंगे उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। वजीर खजाना अब्दुल रहीम रातर का कहना है कि हुकूमत मुलाजमीन के बेशतर मसाइल हल कर चुकी है, लेकिन कुछ मुलाजिम लीडर सरकार और मुलाजमीन के बीच रस्साकशी पैदा कर रहे हैं। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि सरकार टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। सोलना श्रीनगर में आज वजीर आला के हमरा टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्ताह करने के बाद मीडिया के बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम पर कम से कम टैक्स का बोझ डालना चाहती है। बात है वो हमने वन एंड ऑल तमाम मुतालबात हल किए। अब क्या रहा, 6 पे कमीशन भी दे दिया। ये जो एरियर्स थे उनके पे ड्यूज के 4200 करोड़ वो भी हमने फैसला किया देने को, दे रहे हैं वो भी बाज़ाब्ता। इसलिए छोटी मोटी बात रह सकती है। मुलाजिम ग्रेटफुल हैं जिन्होंने इजहार किया मेरे सामने आके। कुछ एक लोग कहते हैं कि भाई ये भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। हमें ये भी देखना है कि सोसाइटी जो हमारी आम पॉपुलेशन है उनकी फिर का भी ख्याल रखना है। वादी में बिजली का बहरान अब संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है। बिजली की गैर मुनासिब सप्लाई और अनशेड्यूल कटौती के खिलाफ बिजबहाड़ा अनंतनाग में लोगों ने हुकूमत और महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नाराबाजी करते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को कई घंटों तक जाम किया, जिसके बाद मुतल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया से वाबस्ता आला अफसरान जाए मौके पर पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद भी एहतजाजियों ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसके बाद पुलिस ने एहतजाजियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। जवाबन एहतजाजियों ने पुलिस पर पथराव किया। दरियासना ममलकती वजीर बराए बिजली वकार रसूल ने इलाके में बिजली की किल्लत और मुनासिब सप्लाई की बहाली का यकीन दिलाया। उनका कहना है कि गैर शेड्यूल कटौती की वजह से सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग है। यहाँ
سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بجلی کا مسئلہ ہے. شیڈول کے مطابق یہاں میٹرسٹل ایریا ہے, پورا بجواڑا ٹاؤن ہے, یہاں تو 10 منٹ کی بجلی بھی نہیں دیتے ہیں. آج مسلسل تیسرا دن ہے کہ رات کو بجلی نہیں ہوتی ہے, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ. یہی وجہ ہماری مانگ جو ہے, اگر یہاں پر شیڈول کے مطابق ہم کو 16 گھنٹہ بجلی دینے ہمیں, ہم 16 گھنٹے نہیں 12 گھنٹے ہی بجلی مانگتے ہیں. 33 kV جو ہے اوور لوڈ کی وجہ سے کافی بار جل گئی. اب اس کا ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے, وہ 2-3 دن میں وہ لائن جو ہے نہیں لگ جائے گی. پاورفل لائن جو ہے اس سے زیادہ کیپیسٹی والی ہم لگا رہے ہیں, تو جو انٹرپشن ان کو 2-4 دن میں ان کو معذرت کا ہوں. غیر معیاری جراثیم کش ادویات کے خلاف شوپیاں میں میوہ کاشتکاروں نے آج زبردست احتجاجی مظاہرے کیے. میوہ کاشتکاروں نے ٹاؤن ہال شوپیاں سے احتجاجی ریلی نکالی, جو کہ قصبہ کے مختلف بازاروں سے ہو کر ڈی سی آفس شوپیاں میں پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی. میوہ کاشتکاروں کا ماننا ہے کہ رواں سال غیر معیاری جراثیم کش ادویات اور غیر معیاری کھاد بازار میں آنے کے سبب فصل کافی متاثر ہوئی, جس کی وجہ سے میوہ کاشتکاروں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. بعد میں احتجاجی کاشتکاروں نے اس حوالے سے ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں کو ایک یادداشت بھی پیش کیا. جب شروع سے ہی ہم نے یہ آواز اٹھائی تھی, جب وہ ٹری اسپرے دیا گیا, اس میں شبو کے جل گئے درختوں کے, تو ہم نے اس وقت یہاں کی جو یہ ذمہ داران ہیں ہارٹیکلچر ایگریکلچر انفورسمنٹ والے, ان سے ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی ہمیں یہ جو آپ نے یہ غیر معیاری دوائی اور یہ کھاد بازار میں رکھی ہے, اس سے ہمارے باغوں کی حالت بگڑ رہی ہے, مگر انہوں نے ہمارے طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا. اور ہم چاہتے ہیں جو بھی دوائی مارکیٹ میں آئے گا وہ پہلے ایگریکلچر یونیورسٹی سے کنفرم اور اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, پھر وہی دوائی مارکیٹ میں ہونا چاہیے. آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپروں نے جموں میں اپنے مطالبات کو لے کر ڈویژنل کمشنر کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. اس موقع پر مظاہرین نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو وہ احتجاج میں شدت لائیں گے. صرف انہوں نے مشن بنایا کہ 6 گھنٹے ڈیوٹی کرو, مگر مشن کے ساتھ ہماری جو سیلری ہے وہ جو آج برکر لگتی ہے نیو پوائنٹ ہوتی ہے اس کی بھی 3600 ہے, اور جو 35 سال پرانی ہے اس کی بھی 3600 ہے. تو انہوں نے مشن بنایا صرف ٹائم کے لیے بنایا, ہماری سیلری کوئی نہیں بڑھائی ہے. ہم اس مشن کو کبھی نہیں لاگو کریں گے جب تک ہمیں پرماننٹ نہیں کرتے, تب تک ہماری کم سے کم. نیشنل کانفرنس نے جموں میں اگلے انتخابات کے دوران نریندر مودی کے اثر پڑنے کا اعتراف کیا ہے. ذرائع نے ای ٹی وی کو بتایا کہ جموں میں بی جے پی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی بڑی ریلی اس کی ایک مثال ہے. ذرائع کے مطابق نیشنل کانفرنس کو خدشہ ہے کہ جموں میں کانگریس کو دونوں پارلیمانی سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. ناظرین, ای ٹی وی اردو کشمیر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال وقت ہے ایک وقفے کا. ارے اشفاق میاں, کیا بات ہے, آج میاں بیوی بڑے خوش نظر آ رہے ہو. جب سے ہم نے گھر کی چھت پہ ٹاٹا شکتی ٹین لگایا ہے تب سے ہم نے چین کی سانس لی ہے. اب نہ چھت سے پانی ٹپکنے کا ڈر اور نہ ہی برف کا کوئی خوف. ٹاٹا شکتی ٹین کو ورلڈ کلاس تکنیکی صلاحیتوں کو برائے کار لاتے ہوئے بنایا گیا ہے. ٹاٹا شکتی ٹین کی چادروں پر 120 گرام کی زنک کوٹنگ کی گئی ہے. کوئی یوں ہی ٹاٹا شکتی ٹین لگوانے کی صلاح نہیں دیتا. ٹاٹا شکتی ٹین کے بااختیار ڈسٹریبیوٹر برائے جموں و کشمیر ہے شیرم ایجنسیز بٹمالو سری نگر. یہ ٹین ان کے ڈیلرز کے پاس بھی دستیاب ہے. مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے, بڑے بھیا کو گرانے کا. طاقت نہیں تھی نا, ڈرتا تھا. آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں. اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی, کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے. الٹراٹیک سیمنٹ, دی انجینئرز چوائس, کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے. مجھے بواسیر ہے, خون بھی آتا ہے, لیکن آپریشن سے ڈرتا ہوں. زید رشی کا کلفلو کیپسول اور ٹیوب, 3 دن 3 ہی خوراک. 01125532553. اچھا, سب کے من کو جم کے بھائی, ہر گرہنی کی بنائے شان, کپڑوں میں لائے بھائی جان. آج شکتی کپڑوں کی جان, آپ کی شان. تاج شکتی ڈٹرجنٹ پاؤڈر. آج میں دوڑوں گا. آج میں دوڑوں گی.
एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। नाजरीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारों ने कहा है कि अगर आम पार्टी की तरह कोई पार्टी जम्मू कश्मीर में उभरेगी तो आने वाले पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में उस पार्टी की हिमायत करेंगे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंचायत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत रियासत में पंचायती राज को मुकम्मल तौर पर लागू नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से उन्हें मायूसी हुई है। हरदशिवा सोपुर में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। जब ईटीवी की टीम ने गांव का दौरा किया तो बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और अपने मसाइल गिनवाने लगे। मकामी लोगों का कहना है कि आज तक उनके गांव में न तो कोई सरकारी अफसर आया और न ही कोई एमएलए, जबकि मकामी पंचायत मेंबरों ने तरक्याती फंड के साथ खुर्द-बुर्द किया। एक मिसाल कायम करते हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी अशोक प्रसाद ने अपनी सरकारी गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का हुक्म दिया है। उसके साथ ही हिदायत दी कि रियासत में दीगर पुलिस अफसरान की गाड़ियों से भी लाल बत्ती हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उन्होंने ये मिसाली कदम उठाया है। As far as the beacon lights are concerned, they have very little to do with security. The original concept of these lights was that emergency vehicles should be recognized and given right of way when they are travelling on the road. It has spread to a large number of other areas, and obviously the Supreme Court and others have taken this matter seriously, and since it has been decided that it will be supplied, or these red beacon lights will be used only where they are suited. I think the state government has taken a decision to the effect that it will be provided to constitutional authorities. कस्बा गांदरबल में रोजाना के ट्रैफिक जाम ने राहगीरों को परेशान कर रखा है। कस्बे की सड़कों को कुशादा न करने की वजह से घंटों कस्बे में जाम लगा रहता है। बहामा चौक से गांदरबल मेन तक अगरचे ट्रैफिक महकमे ने सड़क पर डिवाइडर भी लगाए हैं, लेकिन सड़कें तंग होने की वजह से उनसे भी काम नहीं चलता। डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने जल्द सड़कों की कुशादगी की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने आज सोलना रामबाग में एक्साइज एंड टैक्सेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में महकमा पहले से ही अपना काम कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर आला ने महकमे के अफसरान पर जोर दिया कि वो टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय इस जुमरे में आने वाले लोगों की खिदमात के दायरे को बढ़ाएं। टंगमर और खुरी वटापुरा में आज पीडीपी के दो अलग अलग अवामी जलसे मुनक्किद हुए। जलसे से खिताब करते हुए पीडीपी लीडरों ने आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती को जीत से हमकिनार करने पर जोर दिया। पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी जफर मनहास, एमएलए होम शालिबुग, सूफी अब्दुल गफ्फार, मकामी लीडर अब्दुल मजीद पडर ने इस मौके पर आवाम से पीडीपी को मजबूत बनाने की अपील की।
बहुत ज्यादा बाखबर हो गए हैं। वो गुजर भाई हूँ, वो कश्मीरी भाई हूँ, वो दूसरे भाई हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जिसको सियासत की दुनिया में जिंदा रहना है तो वो लोगों की खिदमत करेगा। वो पीडीपी का यही वजह। MLA खान साहब हकीम मोहम्मद यासीन ने डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर के हमरा शमशाबाद और करमशोरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटरों पर हो रहे कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खान साहब का भी दौरा किया। उन्होंने मरीजों को मयसर मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब के फंड से अस्पताल में हार्ट वीन लाइन के क्याम के लिए 11 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन खेमलता वकलू ने आज श्रीनगर और गांधरबल में कायम क्रेश और फैमिली काउंसलिंग सेंटरों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों और उनकी माओं के साथ बातचीत की और उन्हें दस्तयाब सहूलियात के बारे में जानकारी दी। खेमलता वकलू ने बच्चों में मिठाइयां और तोहफे भी तकसीम किए। राजौरी का 8 साला सालिक मंसूर 2 माह कबल लापता हो गया था। बाद में उसकी लाश मिली। इस वाक़े के खिलाफ तलबा में बहुत ज्यादा नाराजगी है। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इस वाक़े के खिलाफ आज राजौरी में एहतजाज किया। इस मौके पर NC के सूबाई सदर देवेंद्र राणा भी मौजूद थे। डिमांड है कि फास्ट ट्रैक किया जाए। इस सिलसिले में यहाँ से कुछ साथी जम्मू आ रहे हैं। कल हम उनसे बात करके लॉ डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि अगर ये फास्ट ट्रैक हो सकता है तो जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक का कोई जरिया बनाया जाए जिससे कि ये केस जो है जल्दी से जल्दी। जम्मू में करबला के कॉन्फ्रेंस पर एक रोजा मजहबी सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून मुल्क के उलमा ने शिरकत की और करबला की अहमियत को उजागर किया। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रह चुकी है जो वो कायम आले मोहम्मद, और वहाँ आप देखेंगे कि किस तरीके। नाजरीन, ETV उर्दू कश्मीर में वक्त एक और वक्फे का, अभी हाजिर होते हैं। घर को बचाने वाला बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सताए रहने वाला दुख सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। कंपेनियन की धूम है मची है। जैकेट्स, पुलोवर्स, योर्स कंपेनियन। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा